Namaste everyone and welcome to this session where we cover another set on Venn diagrams CAT 2018 slot 2. Let's quickly jump right in and apply our fate framework to decide whether this particular set is doable or not. So this set is about fun sports which provides training in 3 sports: Gilli Danda, Kho and Ludo, and they are saying that currently it has an enrollment of 39 students, each of whom is enrolled in at least one of the 3 sports. इतना डेटा पढ़ के समझ में आ गया है कि वेन डायग्राम का है, 3 स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं. सो विल से कि देयर कैन बी अ वेन डायग्राम लाइक दिस वेयर वी कैन हैव 3 डिफरेंट स्पोर्ट्स, G फॉर गिल्ली डंडा, K फॉर खो, L फॉर लूडो, एंड टोटल जो ग्रैंड टोटल गिवन है वो 39 है. तो इन टर्म्स ऑफ फेमिलियरिटी डेफिनेटली दिस रेट्स हाई. अभी तक तो हम स्ट्रक्चर भी बना चुके हैं, सो दिस मीन्स फेमिलियरिटी में देयर इज एब्सोल्युटली नो कंफ्यूजन. लेट्स क्विकली अप्लाई एम्बिग्विटी वाला पार्ट. 6 clues, total number of 17 students enrolled in G, number of students enrolled in only in G is 1 less. So I don't think ambiguity वाले part पे कोई confusion है, which means ambiguity is also in our favor. We'll apply a tick here. Time consumption, 6 छोटे छोटे clues दिख रहे हैं. Questions देखें तो 2 question तो straight forward दिख रहे हैं. So I'll put a tick or maybe a slash करके question mark. I'm not very sure but I am positively on this side कि बहुत ज़्यादा time नहीं लगना चाहिए. Extra info in questions. If I look at question 3 and question 4, due to academic pressure, कुछ particular condition दी है, so extra info questions में है, ये हमारे favor में नहीं है. मतलब pure definitely 2 ticks तो हैं. It depends on your comfort level with Venn diagrams as a topic, understanding the sets. 2 question तो doable लग रहे हैं. अब बचे हुए 2 questions will be, so I'll keep it as a 3rd set, 4th set. Last के कुछ time बचे हैं, minutes बचे हैं, तो वहाँ पे भी at least 2 question हो जाने का target can be realistic. भले ही चारों क्वेश्चंस ना हो पाए. Now let's quickly start solving this particular set. So what do we have in terms of data? So we know that overall 39 students were participating in the academy, where each of whom is enrolled in at least one of the 3 sports. So बहुत अच्छा clue है, none की value 0 है. The number of students enrolled only in L is double the number of students enrolled in all the 3 sports. All the 3 sports को अगर मैं x ले लूँ तो only in L की value 2x है. There are a total of 17 students, so this data is pretty good. 17 बच्चे G में enrolled है. Number of students enrolled only in G is 1 less than the number of students enrolled only in L. Only in L 2x था, so this data is 2x minus 1. So we have used up first clue, second clue, third clue. Let's look at 4th clue. The number of students enrolled only in K is equal to the number of students who are enrolled in both K and L. Both K and L. Now be very very careful about this. जब आपको both K and L बोला तो ये all 3 वाला region भी include होगा. Always remember when you have 3 sets का Venn diagram and आपको let's say this is K, this is L. So both K and L जैसे ही बोलते हैं both K and L, always remember that this is the entire data that we are going to talk about. So they are saying this entire data is equal to this data which is only K. एक बार read करें. Number of students enrolled only in K is equal to number of students who are enrolled in both K and L. So this part is equal to this part, which means suppose अगर मैं यहाँ P ले लूँ तो can I say X में कुछ value add करूंगा जिससे total P आएगा. So this block has to be P minus X. ये समझ में आ रहा है? I hope ये अच्छे से clear है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं. सो आई इरेज दिस पार्ट. दिस वाज जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, नॉट रिक्वायर्ड. ऑल राइट, सो डॉट भी हटा दें. लेट्स मूव हेड टू द नेक्स्ट क्लू. द मैक्सिमम स्टूडेंट एनरोलमेंट इज इन एल. मैक्सिमम स्टूडेंट तो यहां लिख लेते हैं कि एल वाला जो टोटल आएगा वो मैक्स है. 10 स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन जी आर ऑल्सो एनरोल्ड इन एटलीस्ट 1 मोर स्पोर्ट. अगर आपने वेन डायग्राम्स की बेसिक प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की है तो ये क्लू बहुत इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, which says 10 students enrolled in G are also involved in at least one other sport. मतलब कम से कम 10 बच्चे, कम से कम नहीं, एग्जैक्ट 10 बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम एक और स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं. मतलब ये जो G के साथ इंटरसेक्शन वाला रीजन है, दिस ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक, मैं हाईलाइट कर देता हूं टिक्स के साथ. दिस ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक, ये 3 टिक वाले रीजन्स का टोटल 10 है. अच्छा, अगर ये 3 टिक वाले टोटल्स का रीजन 10 है तो उसमें तो बाद में आते हैं. द फर्स्ट थिंग दैट आई कैन ऑब्जर्व इज कि अगर उसमें मैं 2x - 1 जोड़ दूं तो 17 आना चाहिए. 17 में से ये 3 ब्लॉक्स का टोटल 10 है
तो बचे हुए 2x माइनस वन का टोटल 7 होना पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट ही यहां से कर रहा हूं, 2x माइनस वन अगर 7 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। मैं 3 टिक वाले रीजन की बात कर रहा हूं कि 3 टिक वाले रीजन्स का ग्रैंड टोटल 10 होना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन दिया, 10 स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन जी आर आल्सो एनरोल्ड इन एटलीस्ट वन मोर स्पोर्ट। तो जी वाले इंटरसेक्शन के और एल के साथ एग्जैक्टली 10 स्टूडेंट्स रखते हैं, तो वहां से x की वैल्यू 4 आ गई। जैसे x की वैल्यू 4 आई है, 2 4 जा 8 minus 1 7, so I'll erase this and write it as it is कि ये 7 हो गए। so this data is 7, x की वैल्यू कितनी है 4, so let me put x as 4 here, टिक हटा देते हैं, so x is 4 and now you can revisit this and say 10 students, मतलब इन दोनों ब्लॉक का टोटल कितना आना है 10 आना है। तो मतलब अगर इसकी वैल्यू मैं m ले लूं तो यहां 6 माइनस m लिख सकते हैं ताकि 6 और 4 मिलाकर 10 हो जाए और माइनस m प्लस m मिलाकर कैंसल आउट हो जाए। सो 6 और 4 10, ये ग्रैंड टोटल 10 हो गया। अच्छा, जहां भी 2x है वहां पर अब x की वैल्यू 4 रख के रिप्लेसमेंट कर ही देते हैं। सो 2x मतलब दिस वैल्यू विल बिकम 8। p माइनस x, तो p को p रहने देते हैं, डजंट मैटर, p वाला पार्ट। सो I'll erase this and write p minus x. So this then translates to p minus 4. आई होप ये क्लियर है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग पार्ट, p की वैल्यू भी निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी? लुक एट दिस ब्लॉक, n तो 0 है, इस ब्लॉक को देखो, कैन आई से ये ब्लॉक 17 के रीजन के बाहर वाला है, 17 के बाहर है और पूरा ग्रैंड टोटल 39 है। मतलब कैन आई से दिस ब्लॉक हैज टू बी इक्वल टू 22 ताकि 22 और ये 17 मिलाकर 39 हो जाए। सो दिस ब्लॉक में कौन कौन सी वैल्यूज है? यू हैव p प्लस p, 2p माइनस 4 प्लस 8 विच इज प्लस 4 इज इक्वल टू 22। तो यहां से 2p इज इक्वल टू 22 माइनस 4 विच इज 18। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दैट, p की वैल्यू 9 आ जाएगी, 9 माइनस 4 ये 5 आ जाएगा। सो आई एम इरेजिंग ऑल दिस पार्ट, आई नो द वैल्यू, दिस हियर हैज टू बी 5, दिस हैज टू बी 9। तो मेरे पास सिर्फ एक m नहीं पता है मुझे। अच्छा, एक और कंडीशन दी, उसको भी यूज कर लेते हैं, दैट द रीजन फॉर l इज मैक्सिमम। l का जो रीजन है वो सबसे ज्यादा है, तो l का टोटल कितना है वो निकाल लेते हैं। 8 और 5 13 और 4 17 और 6 23। कैन आई से दिस इज 23 माइनस m। 23 माइनस m 17 से बड़ा होगा, एक कंडीशन ये है। सो लेट्स सॉल्व इट, 23 माइनस m ग्रेटर देन 17। तो यहां से m की वैल्यू आ गई लेस देन 6, m 6 से छोटा है। व्हाट एल्स कैन वी आइडेंटिफाई? l को k वाले टोटल से भी बड़ा होना पड़ेगा। l इज 23 माइनस m, 23 माइनस m हैज टू बी ग्रेटर देन 9 and 5 14 और 4 18, 18 प्लस m से बड़ा होना पड़ेगा। तो m उस तरफ चला जाएगा, विल गेट 2m लेस देन 23 माइनस 18 इज 5, m की वैल्यू इज लेस देन 5/2 विच मींस m इज लेस देन 2.5। तो मतलब m की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हो सकती हैं वो हो सकती हैं 0 1 2। रिमेंबर दीज आर द नंबर ऑफ पीपल, स्टूडेंट्स एनरोल्ड, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द 3 स्पोर्ट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑलवेज हैज टू बी होल नंबर। ये हम मल्टीपल वेन डायग्राम्स के प्रीवियस सेट्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमेशा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यू होल नंबर होनी पड़ेगी। तो 0 1 2 पॉसिबिलिटीज है m के लिए, तो m 0 1 2 के हिसाब से सिनेरियो बन जाएंगे। इतने पार्ट में आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेट्स क्विकली जंप टू द 2 क्वेश्चंस। जो पहले 2 थे आई होप कि वो तो बड़ी कन्वीनियंटली बन जाएंगे। सो दिस इज द डेटा दैट वी हैव। m की वैल्यू की पॉसिबिलिटी में लिख दूं कि m के लिए ये पॉसिबिलिटी है 0 1 2, बाकी सब कुछ हम एज इट इज सॉल्व कर चुके हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन बोथ g एंड l बट नॉट k? g एंड l बट नॉट k मतलब k वाले सेट को छुपा देना है। यू आर टॉकिंग ऑफ 6 माइनस m, 6 माइनस m की मिनिमम वैल्यू करना है, 6 माइनस m की मिनिमम वैल्यू करना है। तो मिनिमम के लिए कैन आई से दिस विल इंप्लाई दैट आई हैव टू कीप m एज मैक्सिमम। m जितना बड़े से बड़ा रख सकते हो रख दो, ताकि बड़ा नंबर माइनस करोगे तो वैल्यू छोटी मिलेगी। m सबसे बड़ी वैल्यू के ले सकता है 2, 6 माइनस 2। योर टीटा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 4। यू विल टाइप इन द आंसर एंड मूव ऑन, सेव एंड नेक्स्ट। 4 आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन k एंड l? k के स्टूडेंट्स कितने हैं? तो 9 and 5 14 and 4 18 प्लस m। k के स्टूडेंट्स अपॉन l के स्टूडेंट्स का रेशो 18 प्लस m अपॉन l के भी थोड़ी देर पहले निकालते हैं, 8 और 5 13 और 4 17 और 6 23, 23 माइनस m, इनका रेशियो दिया है 19/22। नाउ यू कैन ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व देम। आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, बट माय सजेशन इज मत सॉल्व करो, आप ऑब्जर्वेशन से कर लो। 18 में क्या ऐड करेगी 19 आ जाए,
पहला हिट एंड ट्रायल का थॉट ही आता है कि सर m को 1 रख के देख लेते हैं। m को 1 रखेंगे तो 23 माइनस 1 22 फिट बैठ रहा है, तो m1 है, वैसे भी m की 3 ही पॉसिबिलिटी थी, तो कुछ ज्यादा सॉल्व करने का था नहीं। m1 आ गया तो 23 माइनस 1 22 इज द नंबर, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन L विल बी 22। अब इस क्वेश्चन को बिना ये कुछ करे, बिना कुछ सॉल्व करे, आई इरेज दिस एंटायर पार्ट, आंसर तो आ गया सी। मैं अगले फर्स्ट पेज पे जा रहा हूं, मैं सीधे इस क्वेश्चन को देखता, एग्जाम में आखिर के 3 मिनट बचे हैं, अगर मैं सीधे इस क्वेश्चन को देखूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन के एंड एल आर इन द रेशियो 19:22, मतलब रेडिकुलसली इजी का भी नेक्स्ट लेवल कर दिया इस क्वेश्चन में कि के और एल का रेशियो 19 और 22 है, और हमसे पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन एल। थिंक ऑफ इट, आपको सॉल्व नहीं करना है, ना सेट पढ़ना है, ना कुछ करना है, आपको बस ये लिखना है के एल का रेशियो 19-22 है, और आप पूछ रहे हैं 4 ऑप्शन में से एल में कितने बच्चे होंगे, भाई 22 या 22 का मल्टीपल ही होंगे ना, तो एक ही ऑप्शन है 22 वाला, इट हैज टू बी द आंसर, देयर कैन नॉट बी एनी अदर आंसर अपार्ट फ्रॉम इट बीइंग मल्टीपल ऑफ 22। तो पूरा सेट कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिसने भी ऑप्शन बनाए वो ऑप्शन एटलीस्ट 44 दे देता, वो ऑप्शन 66 दे देता, तो शायद सोचना पड़ता। यहां तो यू डोंट नीड टू स्टडी एनीथिंग, ridiculously easy question, answer choice C. Tell me what did you think, were you able to spot this? I was disappointed कि जब मैं सॉल्व कर रहा था तब मैंने स्पॉट नहीं करा। इमेजिन सेट सॉल्व करते टाइम आप सॉल्व ही मत करो ना, रेशियो दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है, आंसर मार्क कर दिया, बाद में सेट को देखेंगे, क्वेश्चन का एक आंसर तो गारंटी है कि सही गया हमारा। एनीवेज लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट, लास्ट के 2 क्वेश्चंस। सो वी नो दैट दिस इज द डेटा का मैप वी हैव। नाउ व्हाट एल्स इज गिवन टू अस, ये हमारा स्ट्रक्चर हमने सॉल्व कर लिया था, m की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी हमें पता है, 0, 1 या 2 में से 3 पॉसिबल में से कोई एक सिनेरियो बन सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, अच्छा 3 और 4 में एक्स्ट्रा इन्फो का डेटा सेम है, जनरली यू गेट अ सेट लाइक दिस, कैट में भी हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा डेटा नहीं देगी, वो बोलेंगे डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन 3 and 4 एंड देयर विल बी अ कंबाइंड डेटा व्हिच इज वैलिड फॉर 3 and 4। सो इट सेज ड्यू टू एकेडमिक प्रेशर students who were enrolled in all 3 sports were asked to withdraw from one of the 3 sports. Now let's understand this statement in a little more detail. ये बोल रहे हैं एकेडमिक प्रेशर के कारण जो स्टूडेंट्स 3 स्पोर्ट्स में एनरोल्ड थे, ऑल 3 में एनरोल्ड थे, हमारा डेटा 4 है वो, तो 4 बच्चे ऐसे थे जो तीनों स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो अब वो बोल रहे हैं भाई पढ़ाई का प्रेशर है, एकेडमिक्स का प्रेशर है, तीनों में जो एनरोल्ड है उनको बोलो कि एक स्पोर्ट में से विड्रॉ कर लेना। इमेजिन यू बीइंग इन द शूज ऑफ वन ऑफ दीस 4 पीपल, कि आप 4 में से कोई एक बच्चे हो जो तीनों स्पोर्ट खेलता है, गिल्ली डंडा भी खेलता है, खो खो भी खेलता है, लूडो भी खेलता है। अब आपको एडमिन, कॉलेज, स्कूल अथॉरिटीज, पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं कि भाई एक स्पोर्ट से विड्रॉ कर लो, तो आपके साथ होगा क्या? थिंक ऑफ इट दिस वे, यू आर एनरोल्ड इन ऑल 3, खो खो, लूडो, गिल्ली डंडा, आपको बोला है कि एक स्पोर्ट में से विड्रॉ करो, तो आपने सपोज बोला कि आई विल नॉट प्ले खो खो, तो अगर आप खो खो नहीं खेलोगे तो अब आप कितने स्पोर्ट्स खेलोगे? 2। कैन आई से देयरफॉर व्हाट दिस मींस इज कि जो ऑल 3 खेलने वाले लोग हैं, अगर ये खो खो खेलना बंद कर देंगे तो दे विल मूव टू द रीजन ऑफ 2 विच इज गिल्ली डंडा एंड लूडो। अगर ये लोग यहां से बाहर जाएंगे तो या तो ये इस एग्जैक्टली 2 वाले रीजन में जाएंगे वेयर दे प्ले गिल्ली डंडा एंड खो खो बोथ बट नॉट ऑल 3, एंड सिमिलरली यहां से यहां जाएंगे। सो थिंक ऑफ इट दिस वे, 3 स्पोर्ट्स से इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा 2 स्पोर्ट्स खेलने की तरफ, क्योंकि एक स्पोर्ट से विड्रॉ करना है, जिस स्पोर्ट से विड्रॉ कर रहे हैं उसको छोड़कर बचे हुए एग्जैक्टली 2 के इंटरसेक्शन में ये लोग चले जाएंगे, मतलब दिस 4 विल डिसिपेट, ये 4 वैल्यू खत्म हो जाएगी, सेंटर की वैल्यू 0 हो गई, और अब ये 0 वैल्यू, ये जो 4 एक्स्ट्रा है, ये 4 टोटल बचे हुए 3 ब्लॉक्स में जाएगा। अच्छा, इसके बाद उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग डेटा दिया, दैट इज आफ्टर द विड्रॉल the number of students enrolled in G was less than the number of students enrolled in L, and it was 6 less, मतलब L minus G की वैल्यू कितनी दी है? 6. The number of students enrolled in G was 6 less than the number of students enrolled in L, while the number of students enrolled in K went down by 1. Number of students enrolled in K went down by 1. अब सोच के देखो, खो खो खेलने वाले लोग 1 से कम हो गए, क्यों कम होंगे? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो तीनों खेलते थे, उनमें से एक बच्चे ने खो खो से विड्रॉ कर लिया होगा, तो जो 4 बच्चे से जो तीनों स्पोर्ट्स खेलते थे उनमें से एक स्टूडेंट ने बोला कि मैं ना खो खो नहीं खेलूंगा कल से, ठीक है आप 2 स्पोर्ट्स का बोल रहे हो, मैं गिल्ली डंडा एंड लूडो खेल लूंगा, तो वो कहां जाएगा? गिल्ली डंडा एंड लूडो में चला जाएगा, वो खो खो के सर्कल से बाहर चला जाएगा, मतलब यहां जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कितने का होगा? +1 का। कैन आई से एक एक्स्ट्रा यहां आ जाएगा इंटरसेक्शन में,
तो 6 माइनस एम की जगह ये 7 माइनस एम हो जाएगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। और दूसरा, बिकॉज यहां पर लेट्स अज्यूम कि यहां पर हमने वैल्यू पी ले ली, तो कहना है यहां जो मूव हो रहे हैं और यहां जो मूव हो रहे हैं उनका बचे हुए का टोटल 3 होना चाहिए, बिकॉज ग्रैंड टोटल 4 था, 4 में से एक तो चला गया है, अब जो बच गए वो 3 है। सो इफ दिस इज पी, कहना है यहां पर 3 माइनस पी स्टूडेंट्स मूव होंगे। चेक कर लो एक बार व्हाट इज हैपनिंग। ये पी लोग वो है जो इस ऑल 3 के रीजन से आए, ये 3 माइनस पी वो लोग हैं जो ऑल 3 के रीजन से आए, और ये 1 वो स्टूडेंट है जो खो खो छोड़ चुका है, जिसके कारण हमें बोला कि एनरोलमेंट इन के वेंट लेस वेंट डाउन बाय 1, तो एक कम हो गया, तो खो खो छोड़ने वाला यहां चले गया। जो लूडो छोड़ने वाला है वो कहां जाएगा, जी और के इंटरसेक्शन में, उसको हमने पी मान लिया। और बिकॉज इन सबका टोटल 4 करना है, तो 1 प्लस पी प्लस 3 माइनस पी, ग्रैंड टोटल कितना मिल जाएगा आपको, 4। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। सो अब इसके बेसिस पे L माइनस जी की इक्वेशन 6 से इक्वेट करते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग लूडो, इसका ग्रैंड टोटल करें। सो we'll have 8 plus 5 13 और 3 16 और 6 22 और 1 23, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। और अब इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, सो we'll have माइनस एम, we'll have माइनस पी, तो 23 माइनस एम माइनस पी माइनस जी की वैल्यू, जी इज गिल्ली डंडा, ये वाला सर्कल, इसमें ऐड करें तो 7 और 1 8 और 6 14, कहना है न्यूमेरिकल वैल्यू 14 है। और वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, तो माइनस एम और प्लस एम तो कैंसिल हो गया, एक वेरिएबल पी आएगा बस हमारे पास, दैट्स इट। यहां बीच की मिडिल वैल्यू तो 0 है, सो 14 प्लस पी, दिस डिफरेंस इज इक्वल टू 6। सिंप्लीफाई करें तो विल गेट 23 माइनस एम माइनस पी माइनस 14 माइनस पी इज इक्वल टू 6। 23 माइनस 14 कितना होता है, 9 माइनस एम और माइनस पी विल बी माइनस 2p इज इक्वल टू 6। ये 6 इस तरफ ले जाते हैं, नेगेटिव वाले टर्म सारे उस तरफ, तो आई कैन से 3 इज इक्वल टू एम प्लस 2p, इधर लिख देता हूं 3 इज इक्वल टू एम प्लस 2p। अब अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो वी नो m प्लस 2p जो है वो 3 के बराबर है, बट रिमेंबर m की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है वो क्या हो सकती हैं, 0 1 या 2 में से। 0 रख के देख लेते हैं, अगर m को 0 रखा तो p की वैल्यू 3/2 आ रही, p रेफर्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 1.5 बच्चे नहीं हो सकते, या तो एक स्टूडेंट होगा या 2 होगा। Again, same type of learning, same type of messages that we have seen in earlier of the cases कि number always has to be a whole number when we are talking of number of students. तो m की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, 1 पुट कर दें, अगर 1 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 2/2, p की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो p 1 आ रहा है, जब आप m को 1 रख रहे हो दिस इज एक्सेप्टेबल। क्या हम m को 2 रख सकते हैं, m को 2 रखा तो 3 माइनस 2 1/2, अगेन वही प्रॉब्लम, विच मीन्स द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन इन दिस केस इज m बीइंग इक्वल टू 1, m की वैल्यू 1 आ गई है, और m 1 आने से p भी कितना आ रहा है 1, सो p भी 1, मतलब यहां का जो सेट है उसमें कितने लोग हैं, 2। 3 माइनस p, p की वैल्यू 1 है तो 3 माइनस 1 दिस इज 2, 5 ऑलरेडी थे, 5 और 2 मिलाकर कितने हो गए 7, और 7 माइनस m था, m की वैल्यू 1 है, तो दिस ब्लॉक हैज अ वैल्यू ऑफ 6। नाउ वी कैन आंसर बोथ द क्वेश्चंस। तो थर्ड क्वेश्चन पूछा है आफ्टर द विड्रॉल हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एनरोल्ड इन बोथ g एंड k। रिमेंबर ऑल 3 में तो 0 हो ही गए, g एंड k में कितने बच्चे हैं, सो दिस टोटल इज 2, 1 और 1 मिलाकर सोच लो, डायरेक्टली टोटल हमने लिख ही दिया था, तो 2 टीटा टाइप क्वेश्चन है, यू विल इनपुट योर आंसर इज 2। लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर द विड्रॉल हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन बोथ g एंड l, g एंड l में कितने एनरोल्ड थे, तो वी हैव रिटन इट एज 6 प्लस 1 7 माइनस m, m की वैल्यू 1 थी, वैसे सोच लो। करेक्ट आंसर चॉइस डी, डी बिकम्स योर आंसर। सेट के आखिरी के 2 क्वेश्चंस वे सुपर चैलेंजिंग। एग्जाम के प्रेशर में ये थॉट दे पाना कि ऑल 3 वाले लोग अब वो एक स्पोर्ट से विड्रॉ कर रहे हैं तो 2 वाले रीजन में जाएंगे, उनके ग्रांड टोटल 4 को डिस्ट्रीब्यूट करना, इक्वेशन को सॉल्व करना, फिर कंडीशन L माइनस जी को सॉल्व करना इज सुपर टफ। सो माय बेट फॉर दिस पर्टिकुलर सेट इन द एग्जाम वुड बी इफ यू वर एबल टू पिक दोस 2 क्वेश्चंस एंड मूव ऑन, कि भाई 2 क्वेश्चन कर लिए गुड इनफ, इसके ज्यादा लालच में ना पड़े कि बचे हुए 2 भी हो जाएंगे। ट्राई करना बनता है, एक बार ट्राई कर लिया, देख लिया, समझ लिया, यू वुड हैव रियलाइज्ड कि नहीं यार आखिरी के 2 क्वेश्चंस विल बी टाइम कंज्यूमिंग। इफ यू हैव बीन एबल टू सॉल्व दीस 2 क्वेश्चंस एज वेल, कुडोस टू यू, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। नहीं कर पाए, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल फॉर पीपल हु आर गोइंग टू फेच अ 99 प्लस परसेंटाइल। तो डोंट बी डिसहार्टेंड एट ऑल कि ये बाकी के 2 नहीं बने, बाकी के 2 नहीं बनेंगे 99 परसेंटाइल वालों से भी, पर पहले 2 बन के उनके पास इतनी स्मार्टनेस रहेगी कि वो बचे हुए सेट्स पे चले जाएं। Can you do it is the real question. So I hope that this particular discussion would have added a lot of value. Keep watching, keep solving all the DLR sets, and I'm sure that you're going to have a rocking DLR percentile
in your actual CAT exam. That's it from my side. I'll take a leave.